ఆగుతుంది, ఇయర్లీ అవుతుంది జిహెచ్ఎంసీకి. ఇది పెద్ద స్కామ్. ఈ స్కామ్ లో భాగం అక్కడ లోకల్ ఎమ్మెల్యే, కార్పొరేటర్, ఆ డివిజన్ ప్రెసిడెంట్, ఆ గల్లీ ప్రెసిడెంట్, బూత్ ప్రెసిడెంట్, ట్యాక్స్ ఇన్స్పెక్టర్, సూపరింటెండెంట్, ఇంకా డీసీ, డిప్టీ కమిషనర్ అందరూ ఎవరికి అవగాహన ఉన్నది. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇల్లు లేదు, ఇల్లు ఉంటే దానికి అసెస్మెంట్ లేదు. ఎట్లయితుంది? మనం సిటీలో ఉంటున్నాం, ఏదో ఊళ్ళో ఉంటున్నాం, లేకుంటే ఫారెస్ట్ లో ఉంటున్నాం, ఏదో ట్రైబల్ కమిటీ, మనం ఎక్కడో ఆదివాసీ, ఎక్కడో జంగలో ఉంటున్నాం. హార్ట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ లో ఫస్ట్ ఇల్లు లేదు, దాని మీద దొంగ ఓట్లు, మళ్ళీ ఇల్లు చూపిస్తున్నారు, దానికి అసెస్మెంట్ ఉండదు, గవర్నమెంట్ నుక్సాన్ అవుతుంది, పెద్ద ఇది స్కామ్ అవుతుంది. సో ఇన్ని 2 months, ఎందుకంటే 20 years గడిపినా, 4 times ఎమ్మెల్యే ఓడిపోయినా, ఒక్కసారి ఎంపీ ఓడిపోయినా, కానీ ఒక మార్పు, ఒక విప్లవం కోసం నా జీవితం అంకితం చేసిన, ఈ సిస్టమ్ చేంజ్ చేయడానికి నేను వచ్చిన. నా మైండ్ లో ఎప్పుడు విక్టరీ లేదు, నా మైండ్ లో ఎప్పుడు హిస్టరీ ఉన్నది. విప్లవం తీసుకురావాలి. నేను కష్టపడుతున్నా. మీ డాక్టర్ నెక్స్ట్ రోజు ఎలక్షన్ కంటెస్ట్ చేయాలంటే నా కష్టం మీ డాక్టర్కి రావద్దు, మీ కొడుకుకి రావద్దు, తమ్ముడు. ఆ తప్పన పట్టుకొని వీళ్ళ ఇంకా పడినా ఎంత పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడతారు, అస్సలు డెవలప్మెంట్ చేయరు. ఆ పార్టీకి మేనిఫెస్టో ఉండదు. మళ్ళీ ప్రతి ఒక్క ఎలక్షన్ గెలుస్తున్నారు. నేను 5 times బలిగా మొదలైన సిస్టమ్. నేను చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ కి చెప్పిన, మీరు ఎంత రాసి పెట్టినారు, సత్యమే చేస్తే ఆ సత్యం గెలవాలి సార్. ఏ ఆఫీసర్ ఆనెస్టీ, ఇంటెగ్రిటీ మీద చేయలేకపోలేదు. కానీ మన దగ్గర కరేజియస్ లేరు. లాస్ట్ టైం నాంపల్లిలో ఆ రాజీవ్ కుమార్ గారు, ఇక్కడ వికాస్ రాజ్ గారు, రొనాల్డ్ రాజ్ గారు, వాళ్ళకు కరేజ్ ఉన్నది, బలం ఉన్నది, గట్టిగా తీసుకురా ఫెరోస్. కరెక్ట్, సిస్టమ్ క్లియర్ కావాలి. దానికోసమే మేము ఐపీఎస్ అయినా ఐఏఎస్ అయినా చేయాలి అని వాళ్ళు సహకారం ఇచ్చినారు. కానీ ఒక నెల తర్వాత టోటల్ ప్రెషర్ మా జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ కి, మా వికాస్ రాజ్ సార్కి, హరీష్ రావు, కేటీ రామారావు, అసదుద్దీన్ ఓవైసీ, అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ, వాళ్ళ యాకూబ్పూర్ ఎమ్మెల్యే, వాళ్ళ చార్మినార్ ఎమ్మెల్యే మొత్తం ఎలక్షన్ కమిషన్ దగ్గర, జిహెచ్ఎంసీ ఆఫీస్ దగ్గర సార్ చేరుకు 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 మొత్తం ఇది యాడ్ డిలీట్ ఎవరు చేస్తారు? పిఎల్ఓస్. నేను చెప్పినా, నేను ప్రూఫ్లతో ఇచ్చిన. ఆ బిఎల్ఓస్ మీరు ఎందుకు సస్పెండ్ చేయరు? వాళ్ళ మీద క్రిమినల్ కేసు ఎందుకు మీరు పెట్టరు? వాళ్ళ మీద చీటింగ్ కేసు పెట్టాలి, బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ పెట్టాలి, కాన్స్పిరసీ పెట్టాలి. ఎందుకు పెట్టలేరు? డిపార్ట్మెంటల్ ఎంక్వైరీ కూడా మీరు వేరు. ఎట్లా ఈ సిస్టమ్ కి మనం చేంజ్ చేస్తాం? మాలాగా ఎంతమందికి మీరు బలి తీసుకుంటారు? మదర్ ఆఫ్ ఆల్ కరప్షన్ ఈజ్ ఎలక్టోరల్ కరప్షన్. ఇలా ముఖ్యమంత్రి పట్టుకుంటున్నాం. కాళేశ్వరం, మెదిగడ్డ, నెక్స్ట్ భగీరథ, కేసీఆర్, లంగా బంధు, దొంగ బంధు, రైట్? ఇంకా వీళ్ళు చేసేది సేమ్. పబ్లిక్ కి లైట్ తీసుకుంటారు. ఏమంటే ఫోకస్ వేపిస్తాం, ఇక్కడ నుంచి అక్కడ మైగ్రేషన్ చేపిస్తాం, పోలీస్ కి మనం చేతిలో పెట్టాం, భయం పెట్టాం, డబ్బులు ఇస్తాం, గవర్నమెంట్ కి పెట్టాం, పోలీస్ ఆఫీసర్స్ మనోలే, ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్స్ మనోలే, మొత్తం డ్రామా, లంగా డ్రామా. నేను డిసైడ్ అయిపోయాను, ప్రాణం ఉండని పోనీ విప్లవం తీసుకువస్తా. ఇలా మీ అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, దీనికి స్పెషల్ కవర్ చేయాలి. మీరు ప్రతి ఒక్క పొలిటికల్ లీడర్
ప్రతి ఒక్క జడ్జ్, ప్రతి ఒక్క ఆఫీసర్, ప్రతి ఒక్క బ్యూరోక్రేట్, ప్రతి ఒక్క మనిషి చూడాలి. రక్తం పెట్టిన మా కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచే ఓల్డ్ సిటీలో ఎవరు కంటెస్ట్ చేస్తారు వాళ్ళకు పిలిపించిన ఇది తీస్తాంరా అన్న అందరు భయపడిన వద్దు ఫిరోజ్ ఖాన్ మనకు ఎందుకు, నువ్వు చేయి అంటే ఎట్లా ఉన్నది అంటే జీవితంలో భగత్ సింగ్ అందరికి ఇష్టం, కానీ భగత్ సింగ్ మన ఇంట్లో పుట్టవద్దు. భగత్ సింగ్ మన గల్లీలో పుట్టాలి, భగత్ సింగ్ మన ఊళ్ళో పుట్టాలి, మన దేశంకి పుట్టాలి, మన ఇంట్లో పుట్టవద్దు. నో ప్రాబ్లం. నా మాట ఒకటే నేర్పించిన నా మానత్వం సత్యమే చేతే హిందుస్థాన్ అదే నేర్పించిన. సో ఇలా మీ ముందు వచ్చిన మీ అందరి సహకారం నాకు కావాలి. ముఖ్యమంత్రికి చెప్పినా తీసుకుపోయి చూపించిన ముఖ్యమంత్రికి అన్న ఇది ఉన్నది ప్రూఫ్లతో ఉన్నాను. మా ముఖ్యమంత్రి కూడా పరిశానైనా ఫిరోజ్ ఏదో 1,02,00,000 అనుకున్న 6,64,000 నీ ఓపికకి మెచ్చుకోవాలి ఫిరోజ్ ఖాన్. నేను అన్నా నువ్వు విజనరీ ముఖ్యమంత్రి, నేను కూడా ఒక విజన్తో రాజనీతిలో వచ్చిన. వేరే ముఖ్యమంత్రి అంటే వద్దు అంటాడు, వద్దురా మనకు ఎందుకు ఈ మొత్తం లొలి పంచాయత్ లోక్సభ ఎలక్షన్ తర్వాత చూసుకుందాం మనం, అది ఇప్పుడు వద్దు, మనకు 64 ఎమ్మెల్యేస్ ఉన్నాయి కదా ఎందుకు వద్దు, ఎంఐఎం సాత్ కావాలి అని చెప్పేది. మా ముఖ్యమంత్రి చాలా గట్టోడు, పొట్టోడు కానీ గట్టోడు. అయినా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినారు, ఇది ఈజీ మాట కాదు. ఒకవేళ స్పెషల్ డ్రైవ్ పెట్టి 10 days స్పెషల్ డ్రైవ్ పెట్టి అందరు బిఎల్ఓస్ కి ఈ లిస్ట్ ప్రకారం ఈ ప్రూఫ్ల ప్రకారం క్లియర్ చేయమంటే టోటల్ ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అయిపోతాయి. 6,60,000 ఓట్లు వెళ్ళిపోతే ఎక్కడ ఓల్డ్ సిటీలో గెలుస్తున్న ఆ మునగాడు 0 అయిపోతాం. 7 కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో వీళ్ళు గెలుస్తారు, ఇది తీసేస్తే 2 కాన్స్టిట్యుయెన్సీలకే పరిమితమైతారు. 2019, 28 కి, దాని తర్వాత 33, 34 లో ఫినిష్ అయిపోతాం. ఎందుకంటే ఎవరు డివైడ్ అండ్ రూల్ చేస్తారు. ఈ దేశంలో వాళ్ళకు వాళ్ళతా లేదు. మన డెమోక్రసీలో యునైట్ అండ్ లీడ్ చేయాలి, డివైడ్ అండ్ రూల్ చేయవద్దు. మని చేస్తారు వీళ్ళు. ఇది ఇలా మీ ముందు వచ్చిన మొత్తం ఈ ప్రూఫ్స్ మీ సహకారం కావాలి, మీ మద్దతు కావాలి. जय हिंद, जय कांग्रेस, धन्यवाद, थैंक यू। आज आपके सामने हम सोमाजीगढ़ा प्रेस क्लब में हैदराबाद लोकसभा जो 7 कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ आते, मलकपेट, कारवान, खोशा महल, चार मीनार, चंदन गुट्टा, याकूबपुरा, बहादुरपुरा, ये 7 कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 कॉन्स्टिट्यूंसियों में 21 से 22 लाख वोटर्स हैं। और जब आप बोकस वोटों की बात करेंगे, डुप्लीकेट वोटों की बात करेंगे, तो जब हम 2 महीने इसके पीछे लगे और हम ये नतीजे पे पहुंचे, 6,60,000 के ऊपर बोकस और डुप्लीकेट वोट है। आपको हैरत होगी, अगर से 6,60,000 को आप डिवाइड करो 21-22 लाख से, नियरली 30%। इसका मतलब क्या है, हर एक 4 वोट को 1 वोट बोकस है। हम इसको 6 कैटेगरियों में डालें और आज हम आपको बताना चाह रहे हैं, ये सिर्फ हम एलिगेशन नहीं कर रहे, हम एविडेंस और प्रूफ के साथ आपके सामने बैठे। और ये एविडेंस और प्रूफ चीफ इलेक्शन कमीशन इंडिया राजीव कुमार साहब को हम दे दिए हैं, और आज आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीईओ तेलंगाना विकास राज साहब को देने वाले हैं। अब जब हम प्रूफ दे दिए तो अब ये मैंडेटरी हो गया
वो तो जरूरी हो गया। और हम मुख्यमंत्री से ये गुजारिश करें कि हम ये प्रूफ दे देंगे बाद आप एक स्पेशल ड्राइव लगाना, एक 1 वीक का स्पेशल ड्राइव, पूरे बूथ लेवल ऑफिसर्स और स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट करके ये प्यूरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल होना हमारे को जाती दुश्मनी किससे नहीं है, हमारे एक सिस्टम का मजाक बनाया जा रहा। और हैदराबाद को हमारी जागीर बोल के अपनी मनमानी आप कर रहे हैं। आपको मालूम है ये डुप्लीकेट वोट जो है इसकी बुनियाद के ऊपर ये क़यादत कायम रखते हमारे को आवाम का काम करने की जरूरत नहीं है, हमारे को मैनिफेस्टो रहने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम ये डुप्लीकेट वोटों पे आना, सामने वाले जो भी कंटेस्ट कर रहे हैं उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करना, इस्लाम खतरे में है बोलना, पुलिस को मैनेज करना, गवर्नमेंट मशीनरी को मैनेज करना, गुंडागर्दी करना, बोकस वोट डराना, इसके ऊपर इनकी क़यादत चल रही। आज मैं 6 कैटेगरी आपको बताने वाला हूं। पहली कैटेगरी फोटो सिमिलैरिटी, दो वोट है, 3 वोट है। एक वोट चंद्रायन गुट्टा में है, एक वोट याकुतपुरा में, एक वोट चार मीनार में है, एक वोट मलकपेट में। हम आपको पूरे प्रूफ दे दिए। ऐसा पूरा मिलेंगे तो 7 हल्कों में, एक MP हल्के में 1,16,000 वोटर हम प्रूफ और एविडेंस दे चुके हैं। सेकेंड कैटेगरी शिफ्टेड वोट्स, ये 2,80,000 वोटों के ऊपर है। वो तो कम से कम 2,90,000 वोट। आप याकुतपुरा में आपका वोट है, चंद्रायन गुट्टा में आपका वोट है, बहादुरपुरा में आपका वोट है, कारवान में आपका वोट है। तो क्या हो रहा, आप कारवान में वोट डाल दे रहे, फिर वापस निकल के आप बहादुरपुरे में वोट डाल दे रहे, आप मलकपेट में वोट डाल दे रहे, फिर आप चार मीनार को आ जा रहे। इस तरीके का माइग्रेशन इधर से उठा के उधर लाना कभी भी हमारा बयान रहता। और कभी भी हम पुलिस कमिश्नर और DGP साहब को बोलते, साहब ये मंदे का मंदा आता, ये मंदा कहां से आता हमारे को नहीं मालूम, मगर ये मंदा आके बोकसिंग करता, आपके मंदे को डिस्बर्स करना। ये मंदा ये छे याकुतपुरा का, मलकपेट में, चंद्रायन गुट्टे का, कारवान में, कारवान का चार मीनार में। आप शिफ्ट करो, बराबर करो। मगर आपके पास 2 और 3 वोट कैसा रहते, 1 वोट ही रहने का बस। तो ये हमारा सेकंड कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी सिंगल वोट, एक घर में एक ही वोट। आप हिसाब डालेंगे 1,70,000 के ऊपर। आपको एक एग्जांपल बता दो, मलकपेट है, मलकपेट के अंदर 28,500 सिंगल वोट। इसका मतलब क्या है, आपके जो मोहल्ला है उसके अंदर एक सिंगल वोट रहता, आप जो बस्ती में रहते 3-4 सिंगल वोट रहते। अरे भाई उन्हें अकेला है, उसको अम्मा नहीं है, बाबा नहीं है, लावारिस है, अरे इन्हें बेवा है, अरे इन्हें यतीम है, ऐसा आपके मोहल्ला निकालते 3-4 निकलते। अब आप देखिए एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 28,000, 30,000, 25,000 टोटल मिलाए तो 1,70,000 के ऊपर ये है सिंगल वोट। इसका भी हम प्रूफ दे दिए। डेथ वोट 15,000 डेथ मर गए, पूरे मर गए सवाले वोटां को आते। मैं पूरों से लास्ट टाइम भी गुजारिश करा, फिर से गुजारिश कर रहा हूँ, नेक्स्ट MP इलेक्शन आ रहा, अगर से मरे से वोटा नहीं निकले तो आपके पोलिंग बूथ पे आ जाओ। आपके बाबा का, आपकी अम्मा का, आपकी ससुर का, या आपकी बीवी मर गई, पूरे जने आएंगे आपको मिलने को बूथ पे। जन्नत को जाने की ज़रूरत नहीं है,
ना दोजख को जाने की ज़रूरत है, ना जहन्नुम को जाने की ज़रूरत है। पोलिंग स्टेशन में आ जाओ, दीदार कर लो। ये है हकीकत। हम काम करना, हम डेथ सर्टिफिकेट लगाना, हम पूरे डेथ सर्टिफिकेट लगाया। 6वीं कैटेगरी, मज़े की कैटेगरी है। एक घर में अगर से 6 वोटर के ऊपर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डायरेक्शन है कि बूथ लेवल ऑफिसर बूथ लेवल एजेंट के साथ जाके वेरिफिकेशन करके रिपोर्ट डालो। मगर आपको हैरत हो जाएंगी, हैदराबाद लोकसभा के अंदर 680 घरों में 54,000 वोट आए। 680 घरों में 54,000 वोट आए हैं। एक एग्जाम्पल देता हूं जो याकुतपुरा का, क्योंकि 2 जने बहुत फेमस है। याकुतपुरा अमजदुल्ला खान, नामपल्ली फिरोज खान, दोनों असेंबली में रहते तो हंगामा करते थे। उन्हें भी बोगस वोटों का शिकार, इन्हें भी बोगस वोटों का शिकार। अमजदुल्ला खान को मैं आपके चैनल के थ्रू बोल रहा हूँ, बाबा तू पूरी दुनिया फिर रहा था, हंगामा कर रहा था। आपके गली के सामने का एक एड्रेस देता हूँ मैं आपको हाउस नंबर भी देता हूँ, लिख लो मेरे भाई। हाउस नंबर 17-1-391। इसके अंदर 662 वोट्स, 660 वोटों के ऊपर एक ही हाउस नंबर पे। और मेरा को जहाँ तक अंदाज़ा है 200 या 250 स्क्वायर यार्ड का ये घर है। अमजदुल्ला खान अगर से ये घर को पकड़ लेता तो चुनाव जीत जाता था। चलिए खैर कोई बात नहीं है। अभी मैं नंबर बोल रहा हूँ अमजदुल्ला खान, आप जैसा ये सुन लेते जाइए घर के ऊपर जाके आपका वीडियो बना के डालिए। सो इस तरीके से 680 घरों पे 53,000। कारवान में जाएंगे, एक घर है 200 स्क्वायर यार्ड का, 360 वोट है। आप वहाँ से चार को आएंगे, 200 स्क्वायर यार्ड का घर है, 450 वोट हैं। और एक बहादुरपुरा को जाएंगे, 300 स्क्वायर यार्ड का घर है, 420 वोट हैं। तो आखिर ये वोटा कहाँ से आ रहे हैं? ये 6वीं कैटेगरी। घरा रहते नहीं, हाउस नंबर नहीं रहता, आपका जो कार्ड नंबर है, आपका जो एपिक नंबर हॉल टिकट के वैसा नंबर आ जाता, आपका फ्लैट का नंबर आ जाता, आपका घर जो सर्वे में है वो सर्वे नंबर पे आ जाता। इस तरीके से आज तक आप सुने गोस्ट वोटर, बोलतो गोस्ट बोलतो जिन, इतने 23,000 जिना है। तो गोस्ट वोटर तो सुने थे, मगर ये गोस्ट घर क्या है? घर ही नहीं है, घर ही नहीं है। घरा भी बन गए, ओटरा भी बन गए, ओटा भी दल गए, चुनाव भी जीत गए। हार्ट ऑफ हैदराबाद ये ड्रामा चल रहा, इसके भी हम आपको पूरे प्रूफ दे दिए। उसके बाद में जब हम पूरा जांच पड़ताल करें, हैदराबाद लोकसभा के अंदर 2,80,000 घरों को आप टैक्स नहीं पे करें। आपके इत्तला के लिए बता दो, 50 स्क्वायर यार्ड का घर है तो 3,000 रुपये आपको टैक्स होता है। पहली बात, वहां पे घरा नहीं है। अगर से घरा है तो उसको असेसमेंट नहीं हुआ। अगर से 2,80,000 घरा है जिसको असेसमेंट नहीं हुआ, 3,000 रुपये से आप डाल देंगे तो 65 करोड़ का नुकसान हो रहा गवर्नमेंट को। और ये 65 करोड़ में जो भी पैसा कौन कमा रहा? लोकल एमएलए, लोकल कॉर्पोरेटर, डिवीजन प्रेसिडेंट, बूथ प्रेसिडेंट, लोकल लीडर, टैक्स इंस्पेक्टर, सुप्रीडेंट म्यूनिसिपल, डिप्टी कमिश्नर म्यूनिसिपल। ये बड़ा स्कैम है। और मैं ये मुख्यमंत्री को बताया, रेवंत रेड्डी साहब आप ओल्ड सिटी डेवलप करना चाह रहे, आज बीआरएस उधारों में
करके चले गई तेलंगाना को। आप बड़ा स्कैम केसीआर का पकड़ रहे, आप कालेश्वरम बोल रहे, मिशन का भगीरथा बोल रहे, मेडारम बोल रहे। इसी तरीके से हैदराबाद में एक स्कैम है, वहां के लोकल लीडर्स और म्युनिसिपल ऑफिस ये मिलके आवाम को पैसा दे रही। आवाम अगर से पैसा ना देती थी तो मैं ये नहीं लाता था, क्योंकि बात ये आ जाएगी, अरे भाई ये घर को असेसमेंट नहीं है, फिरोज खान बात को उठा रहा, हमारे घर से पैसा जाएगा। कॉमन आदमी बोलेगा मैं तेरा नुकसान कर दे रहा हूं, मेरे को आवाम का नुकसान नहीं होना है। मगर ये आवाम से ये लीडरा, ये टैक्स इंस्पेक्टरा, ये पूरे मिलके पैसा ले रहे। और अगर से जब आप असेसमेंट नहीं करा रहे तो आपका कंस्ट्रक्शन इलीगल है। कल आप घर बनाना है तो कहां से देंगे आपको? कल के दिन कुछ अच्छा बुरा होता, आपको घर गिरवी रखना पड़ता, बैंक लोन लेना पड़ता, कुछ बीमारी आती, बच्ची की शादी आती, बच्चे को अमेरिका को लंदन को पढ़ाना भेजाना है, अगर से आप असेसमेंट कराएंगे तो आपको लोन मिलता। सो आज गवर्नमेंट के सामने मैं ये लाया हूं, ये बड़ा स्कैम। तो अल्टीमेटली फिरोज खान की फाइट जो है वो फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, सेफ डेमोक्रेसी, पूरों की अम्मा का करप्शन है वो कसोट। आज आप लाइट लेके इधर उधर फिरते, आप वहां के फायदा खुद मलाई मस्का करोड़ा करोड़ा कमा रहे आप। हैदराबाद को ब्लैक लिस्टेड कर दिए, आवाम का काम लाइट लेते आप। सोशली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, एजुकेशनली आप बैकवर्ड रखते, आप ग्रांटेड ले रहे। 6,60,000 जब वोट है मेरे पास बोकस, तो मैं आवाम को क्यों केयर करूं? मेरे तो वोटर डल जाते। मेरा जो भी कार्यकर्ता है ये चोरी के अंदर महारत कर लिया, पीएचडी कर लिया, हमारे को आवाम की क्या फिक्र? हैदराबाद हमारे बाप की जागीर है, हमारे दादा की जागीर है। पहले हमारे दादा की थी, हमारे बाप की थी, अब हमारी होंगी, फिर आने वाली हमारे पोटा पोटी की होंगी। आवाम को बेवकूफ मारो, कमजोर रखो, गरीब रखो, बोकस उखड़ने का हंगामा करो, हर एक गवर्नमेंट को जाके चेपो। आज वही चेपने में रेवंत रेड्डी से क्लोज होने को देख रहे। लंदन को नहीं बुलाए, चले गए, फोटो डाल लिए। हैदराबाद में खरीब खरीब आके बात कर रहे। बीआरएस के साथ थे 10 साल, जितना खाना था मने मस का बीआरएस का खा लिए, खा के सारा रेवंत रेड्डी से क्लोज होने के लिए केसीआर को बोल रही तू मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करे। वाह रे वाह, तुम ना क्या करे मुसलमानों को? तुम ना जब उनका क़यादत पे थे, जब बोलना था, अरे बाबा तुम 12% नहीं दिए, वक्फ को जुडिशरी नहीं दिए, मुसलमानों को नौकरियां नहीं दिए, हट चिंदी चोर पार्टी छोड़, चोर केसीआर बोल के जब नहीं बोले। अब हमारा रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बनते की, जब क़यादत में थे तो रेवंत रेड्डी की चड्डी के बारे में बोल रहे थे, आरएसएस की चड्डी, आरएसएस की चड्डी। हाँ, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्टी आईसीयू में है, मर जाती, बेकार पार्टी, चिंदी पार्टी, लंगड़ी पार्टी। औकात तो भूल जाते। दारुसलाम डीएसओ पार्टी कांग्रेस, पूरे इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज था कांग्रेस, हर एक होता डीएसओ तो कांग्रेस। लोकसभा में आज जीते डिलिमिटेशन करके हलवे का वैसा दिया राजशेखर रेड्डी कांग्रेस। फिर देखो तो बीजेपी को गाली, उससे दोस्ती, फिर बीआरएस से दोस्ती। आज रेवंत रेड्डी आते कि समझ गया अब ये रेवंत रेड्डी जाने वाला नहीं, मैं खतरनाक है। केसीआर तो हैट्रिक नहीं मार सका पा बेचारा, ये रेवंत रेड्डी बहुत जवान है, तगड़ा है, इन्हें 15 साल तक रहता, अपनी दाल नहीं गलने देता। केसीआर साहब बहुत शरीफ थे, अच्छे थे, इन्हें जरा थोड़ा हटावा है और बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है, बहुत शार्प है। दोस्ती करो, आ रही खरीब, पर आपको खरीब तो ला नहीं सकते।
सिंपल। जो कांग्रेस को खत्म करता हूं बोला, रेवंत रेड्डी उसको कैसा लाता? नामुमकिन है। तो रही बात, आज जो है ये तमाम प्रूफ्स हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे चुके हैं, सीओ तेलंगाना को देंगे, स्पेशल ड्राइव लगाएंगे और पूरे बीएलओस को ये स्पेशल ड्राइव में लगाएंगे, लगा के प्यूरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल होना, फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना। वो फेयर वोट डाल लो, हमारे को नो प्रॉब्लम। मियाँ बीवी राजी है तो क्या करता, खाजी है ना, वोटर डालता तो दला लो। मगर निकाह करतो बोल के हैंडा देते तुम ना, तो वो हैंडा नहीं देना। करिए। ये सिर्फ डेमोक्रेसी का जो नारा है, ये खाली हैदराबाद के अंदर है या दूसरे हल्कों में? क्या पूरे ईमानदार होते हैं, बोगस नहीं है, पूरे जो है ईमानदार होते हैं दूसरे हल्कों के ताल्लुक से आपका क्या राय है? क्या उनके ताल्लुक से भी आप नुमाइंदगी करेंगे? दूसरे हल्के है 2-3% है वहाँ पे बोकस, और उनके वहाँ के लीडर्स के ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। जिस तरीके से मैं जिद के ऊपर बैठा, वो भी जिद के ऊपर बैठना। मगर यहाँ हैदराबाद और नामपल्ली का हाल क्या है? यहाँ पे 30% बोकस वोट है, हर चौथा वोट बोकस है। तो यहाँ पे सिस्टम का प्रॉब्लम है। एमआईएम पार्टी हैदराबाद छोड़ के सिकंदराबाद में क्यों कंटेस्ट नहीं करती? जुबली हिल्स पे क्यों नहीं कंटेस्ट करती? मुशीराबाद से क्यों कंटेस्ट नहीं करती? निजामाबाद से, बोधन से, वारंगल से, महबूब नगर से मुसलमान की तादाद तो है ना। 119 कॉन्स्टिट्यूएंसी में 34 कॉन्स्टिट्यूएंसियां मुसलमान की तादाद से है और मुसलमान के वोटों से। क्यों वो ओल्ड सिटी छोड़ के, हैदराबाद छोड़ के दूसरी जगह क्यों नहीं जाते? और आज आप पूरा हिंदुस्तान में फिर रहे हैं। कहीं के लिए फिर रहे हैं आप? पॉलिटिकल पोलराइजेशन करके फिर रहे हैं आप, मोदी के एजेंट बन के फिर रहे हैं आप, बीआरएस के दलाल बन के फिर रहे हैं आप। ये पूरे दुनिया को मालूम हो गया आप बीजेपी के एजेंट है, आरएसएस एजेंट है, सबको मालूम हो गया सच आपका। और आपकी क़यादत किस पे करते हैं आप? खाली चोर वोटों के ऊपर करते हैं आप, बोगस वोटों के ऊपर करते हैं आप। अगर से ये बात मेरी झूठी है तो आने वाले जुम्मे में मक्का मस्जिद आजा बोलो। फिरोज खान प्रेस क्लब में झूठ बोला, बोगस वोट नहीं है, मैं उसके पेट पे मुंडी डाल देता हूं। सीनियर पॉलिटिशियन इलेक्शन हैदराबाद से नेक्स्ट कैंडिडेट हैदराबाद से कांग्रेस। सुनिए आप, हैदराबाद से दें दो, सिकंदराबाद से दें दो, जहीराबाद से दें दो, या मेरे को मोदी के ऊपर वाराणसी दे दो। मैं तो योद्धा हूं, लड़ना आता। चुनाव बोले तो वो मेरे खून में है। खामोश बैठो बोल तो मेरे को नहीं आता। मैं कोई सीट पूछता नहीं, मगर हाई कमांड जो सीट बोले वहां पे लड़ लेता हूं। सब इतने सीनियर का आप पॉलिटिशियन होते हुए डाटा कलेक्ट करने इतना टाइम क्यों लग रहा है? भाई ये डाटा करना मामूली बात है। म्यूनसिपल जो बीएलओज है उन्हें नहीं देते, उनकी नौकरी पे आ जाता, उनको डर है, उनके घर पे अटैक हो जाता। अच्छा, लास्ट नामपल्ली के ताल्लुक से बोगस वोट जो आप कंप्लेन कर रहे थे उसका कुछ फायदा हुआ? 1 लाख वोट डाला था तो 46,000 डिलीट हुए, 50,000 डिलीट नहीं हुए। उसके वजह से मैं हारा 2000 से। पहली टाइम सिस्टम काम करा, उसका मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ राजीव कुमार साहब से, चीफ इलेक्शन इंडिया, विकास राज साहब सीईओ तेलंगाना, और हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर रोनाल्ड राज साहब का। ये लोग हिम्मत करके वो 46,000 निकाले। मगर जब बीआरएस की गवर्नमेंट थी, कंटिन्यूस प्रेशर आया इनके ऊपर। केटी रामाराव, हरीश राव, असदुद्दीन, अकबरुद्दीन कंटिन्यूस फोन करके रोको रोको रोको, और उसके लिए काम रुका। उसके लिए मैं चुनाव हारा। चीफ मिनिस्टर ने आपको मालूम हुआ कि आपको बुला के पूछे कि हैदराबाद से लड़ोगे, तो आपका क्या जवाब, क्या चाहे? चीफ मिनिस्टर साहब मेरे को नहीं बोले हैदराबाद से लड़ो। मगर अगर से चीफ मिनिस्टर साहब बोलेंगे हैदराबाद से, राहुल गांधी बोलेंगे वाराणसी से, किधर से भी मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं पूछता नहीं, मगर जो हुक्म आया सराखों पे जंग के लिए हम तैयार हैं। जय हिंद, जय कांग्रेस, शुक्रिया, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज।